topic is, screen is visible to all of you? Yes, sir. Okay, students. Yes, So today we will discuss about the structure of glucose. Okay, so structure of glucose, it is of two types. First is open chain structure and second is cyclic. This is very important, student. First is open chain, second is cyclic. Okay, so open chain, you know what is the molecular formula of glucose, students? C6 H12 O6. Okay, and who will tell the definition of carbohydrate? Latest definition. There were two definitions. Yes, first was the hydrates of carbon, but it was rejected, and this is polyhydroxy. So look here, there are OH group or not? Polyhydroxy, aldehyde, or ketone. This is the definition of carbohydrate. Okay, student. So here what we are doing, there are two types of structure. First is open chain and second is cyclic structure. So first of all we will discuss open chain in which all 6 carbon are linked with each other in a open chain pattern. Okay, and as you are looking here, what if I am putting O, this carbonyl group of aldehyde on left hand side, in this structure it is on right hand side. So no issue, any position you can decide for this double bond O, either on right hand side or left hand side, कहीं भी कर सकते हो, both are same. And you will keep in mind OH will take the OH of third carbon will take the left hand side position. ये भी मैंने आपको बताया है already, ठीक है ना? So this is the structure of glucose, open chain structure. But what will happen, student? Look here, now we are going to discuss cyclic structure. This is important, cyclic structure. So what will happen? OH of carbon number 5, this lone pair of OH will make the attack on carbon number 1, will make the attack on carbon number 1. अब ध्यान से समझेंगे. So what will happen? This bond will come on oxygen. This bond will go on oxygen because carbon can hold only 4 group. So one bond is with hydrogen, second bond is with oxygen, and third bond again with carbon, and fourth will be formed by with this oxygen. So what will happen? This pi bond will shift on oxygen atom. ये तो पता ही है आप लोगों को. So what will happen, student? Oxygen will gain the negative charge. This oxygen will gain the negative charge. Okay, and all 6 carbon 2, 3, 4, 5 and 6 will remain as such. No change in the position of group. ये एज इट इज रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. अब ये देखो कार्बन नंबर 5 का जो ये ऑक्सीजन है, this oxygen has connected with this carbon. Okay, this oxygen has connected with this carbon. Okay, तो ये मैंने थोड़ा सा इस तरह से करके बॉन्ड दिखाया, ये एक ही बॉन्ड है. ये मत समझ लेना कि भाई ये थोड़ा सा अलग है. ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड ये हो गया और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ये बॉन्ड हो गया. बट हाइड्रोजन विल रिमेन एज सच because hydrogen is present at oxygen, and this lone pair will also be as such. But what happened of this lone pair? This bond is formed at the cost of this lone pair. So oxygen will gain the positive charge. यहां तक बताओ आपको समझ में अभी तक आया कि नहीं आया? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ. कुछ नहीं, बहुत सिंपल हुआ है. जो 5th कार्बन पर OH है वो उसका ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ गया. ठीक है, वो सिंगल बॉन्ड बन गया और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो हमें पता है, वी नो दैट स्टूडेंट, व्हाट वी नो दैट कि भाई ऑक्सीजन कैन नॉट होल्ड पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. सो व्हाट विल हैपन? दिस हाइड्रोजन विल गिव इट्स बॉन्ड टू द ऑक्सीजन. और इस हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? जब ये जाएगा यहां से अपना बॉन्ड देके तो प्लस चार्ज आएगा, और बाद में ये प्लस कहां चला जाएगा? उस जगह को ढूंढेगा जहां नेगेटिव चार्ज है. मतलब छोटे से तौर पे आप ये देखें, ये हाइड्रोजन यहां जा रहा है इस ऑक्सीजन पर. यही हुआ ना इसका मतलब. ये हाइड्रोजन कहां जा रहा है? इस ऑक्सीजन पर जा रहा है. तो अब आप एक स्ट्रक्चर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे. बाकी जो स्ट्रक्चर है वो मैं रफ कर रहा हूं, वो स्ट्रक्चर तो मैं रफ कर रहा हूं.
अब मैं जगह बना रहा हूं, इस चीज को आप ध्यान से देख लें, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, ये जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा। चलिए देखो क्या हुआ अब यहां पर, इसको मैं यहां ले आता हूं, ये हो गया OH, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये यहां आ गया, ये हाइड्रोजन ऐसे ही है 2 3 4 5 6, 6 कार्बन ऐसे ही है। फिफ्थ पर बताओ क्या हुआ, फिफ्थ कार्बन पर, फिफ्थ कार्बन पे जो ऑक्सीजन है वो किससे कनेक्ट है, 1 के साथ। 4 पर OH राइट हैंड साइड है, H लेफ्ट पर है, चेक कर लो। थर्ड पर H लेफ्ट राइट हैंड साइड है, OH लेफ्ट हैंड साइड है, एंड एट कार्बन नंबर 2 OH on right hand side and H on left hand side, and carbon number 5 H is also there। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे जल्दी बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया आपका। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, कितनों को समझ में आ गया? रेज योर हैंड। ये कार्बन नंबर, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, रेज योर हैंड। सना, सना, शिफा, अनम्यूट एंड डेल, रिदिमा, चलिए फिर अब आगे देखते हैं इसके बारे में। अब एक बात बताओ, मैंने अभी बच्चों एक बात आपको इंपॉर्टेंट बताई थी, जब मैंने यहां पर एक स्ट्रक्चर बताया था, इस O के बारे में एक बात कही थी, मैंने कहा था आप इसको इधर भी रख सकते हो, बोला था कि नहीं बोला था? बताया था ना कि आप इसको लेफ्ट हैंड साइड भी रख सकते हो डबल बॉन्ड O को, राइट हैंड साइड भी रख सकते हो, बोला था। तो अब मुझे क्या आप ये बता सकते हो कि जो एक और स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी है यहां पर, वन मोर पॉसिबिलिटी इज देयर, जिसमें क्या होगा, जिसमें क्या होगा जल्दी से बताओ, कोई भी किसी को समझ में आया हो तो मैं क्या बताने जा रहा हूं? क्या होगा? जिसमें ये OH आपका कहां आ जाएगा, ये वाला OH कहां जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे भी तो हो सकता है, अगर आप कार्बोनिल को ऐसे मान के चल रहे हो तब तो OH बनेगा आपका इधर, बाकी 6 कार्बन एज इट इज। और अगर आप कार्बोनिल को राइट हैंड साइड मान के चल रहे हो तो आपका ये भी तो बन सकता है। टेल मी, इज इट क्लियर और नॉट? यस। ये भी आपका क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जल्दी बताओ, ये वाली बात भी आपको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? यस सर। यस सर। हाँ, अब अगर जिसको अभी तक मेरी कोई बात समझ में नहीं आई, मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर किसी को कुछ समझ में अभी तक मेरी बात नहीं है, तो अब जो मैं आगे स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं वो याद कर लेना, आपका काम बन जाएगा उतने से। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर आएगा और कुछ नहीं आता। आपको आ सकता है कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है, जिसको पाइरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बनाने जा रहे हैं आप? पाइरेनोज स्ट्रक्चर। अब ये पाइरेनोज क्या होता है, देखो, 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें बीच में ऑक्सीजन आ जाए, इसको पाइरोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पाइरोल। हालांकि बीच में रिंग भी होती है। तो ऐसा ही मिलता जुलता स्ट्रक्चर हम कुछ बनाएंगे जिसमें ऑक्सीजन इस 6 मेंबर्ड रिंग में होगा। ये देखो, ये मैंने बनाया इस तरह से, इसको मैंने ऐसे बना लिया। ओके, एंड
मैं कुछ कार्बन नंबर लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2 होगा, ये कार्बन नंबर 3 होगा, कौन सा वाला, ये 1 2 3 4 5। अब आप देखेंगे 6 कहां गया वो भी बताऊंगा। पहले आप ये बताओ, ये रहा आपके पास कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। मुझे एक बात बताइए, कार्बन नंबर 1 पर क्या क्या दिख रहा है आपको, H एंड OH। अब एक बात याद रखेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको आपने टॉप पे बनाना है, जो राइट हैंड साइड है उसे आप कहां बनाएंगे, बॉटम पर ले जाएंगे। कैसे मतलब, कार्बन नंबर 1 पे टॉप पे क्या आएगा, H, और राइट हैंड साइड वाला बॉटम पे आएगा यानी कि OH। ये वो कार्बन नंबर 1 है बीच में सेंटर में। सिमिलरली एट कार्बन नंबर 2 H will be on top and OH will be on bottom. Carbon number 3 OH will be on top and H will be on bottom. Carbon number 4 H will be on top and OH will be on bottom. Now check, carbon number 5 is linked with oxygen with carbon through this oxygen. Carbon number 5 is linked with carbon number 1 through this oxygen. So same, carbon number 5 is linked with oxygen through this oxygen. At carbon number 5 what is there, ये CH2OH आपने हमेशा टॉप पे लेना है, एंडिंग हमेशा कार्बन से करनी है, ठीक है। और H बचा इस कार्बन नंबर 5 पे, वो आप कहां ले लेंगे, बॉटम पे। यहां इसको H को टॉप पे मत ले लेना, ऑक्सीडाइज फॉर्म हमेशा टॉप पे ली जाएगी। क्लियर। अब जरा इसको बनाएंगे, इस वाले को जल्दी से बनाओ, कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ ए रिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ ए रिंग लाइक दिस, ओके। देन वी विल असाइन कार्बन, हम क्या बनाएंगे, कार्बन को दिखाएंगे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 3 4 5, ये समझ में आ गया ना, देखो 6 कार्बन ये हो गया, ठीक है ना, 5 के बाद 6, ऐसी 1 2 3 4 5 और 5 पे एक आ जाता है कार्बन नंबर 6 CH2OH, वो तो आ ही जाता है ना, आपको पता ही होगा। अब मुझे बच्चों, you will tell me what is at carbon number 1 here. If we are considering O on left hand side, so OH on left hand side, this OH will come on top and H will come on bottom. Similarly at carbon number 2 H will come on top, OH on bottom. At carbon number 3 now OH will come on top, this is important, जो कि इसमें भी सेम था। कार्बन नंबर 4 H will come on top and OH will on bottom. And carbon number 5 already I told you, we will take CH2OH on top and H on bottom. Okay, so who will tell what is the difference in these two structure, what is the difference, can anybody tell? Carbon number 1. Yes, there is Sir, carbon number 1. कार्बन नंबर position. 1। अब स्टूडेंट आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात याद करनी है, मैं कौन से कलर से लिखूं, इससे लिखता हूं। देखो, अगर आपका H टॉप पर है, H, ये कहलाएगा आपका अल्फा ग्लूकोज। कौन सा, अल्फा ग्लूकोज, ग्लूकोज नहीं लिखूंगा, पायरेनोज स्ट्रक्चर है तो मैं इसको कहूंगा अल्फा ग्लूको पायरेनोज, अल्फा ग्लूको पायरेनोज। अच्छा, इसमें देखना H कहां है, बॉटम पर, बीटा ग्लूको पायरेनोज, ओके। और अगर आपको मेरी पहली क्लास याद आ रही हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताया था कि ये तो जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, किसका बनाया बताओ मैंने, ये किसका स्ट्रक्चर है ये, Glucose. हाँ, पहला वाला स्ट्रक्चर किसका है, ग्लूकोज का। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया, ये वाला किसका है, येलो वाला Nose. है, Nose का, मैं nose
यस, ये किसका है? मैनोज का। किसी को नहीं पता चल रहा हो शिवांकर, हाउ इज इट ऑफ मैनोज? सो चेक कार्बन नंबर 2 एंड कंपेयर इट विद ग्लूकोज। ठीक है ना? ओके सर। हाँ, ओके सर। तो OH जो है उधर राइट हैंड साइड है, इधर लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये है आपका मैनोज और ये है आपका ग्लूकोज। अच्छा, अगर मैं 4 पे बदल देता, OH इधर ले आता, तो वो बन जाता आपका गैलेक्टोज। क्या बन जाता? गैलेक्टोज। तो कोई बता सकता है इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? इनको मैं क्या कहूंगा? ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? एपिमर। हाँ, ये क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के एपीमर्स। तो एपीमर की डेफिनेशन है कार्बन नंबर 1 के अलावा अगर कहीं भी अंतर है, 1 के अलावा की बात कर रहा हूं मैं, अगर कहीं भी डिफरेंस है तो वे एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? एपीमर। लेकिन अगर कार्बन नंबर 1 पे अंतर हो स्टूडेंट्स, अगर कार्बन नंबर 1 पे डिफरेंस हो तो उसको कहते हैं एनोमर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अगर कार्बन नंबर 1 पे डिफरेंस होगा तो वो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के एनोमर्स। इज इट क्लियर? सो अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर बिकॉज दे हैव डिफरेंट configuration of group at carbon number 1. क्लियर? अब आपको मैं स्ट्रक्चर बनाने बताता हूं। देखो, पाइरेनोज स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। पाइरेनोज स्ट्रक्चर्स, सबसे पहला मैं बना रहा हूं, देखो, ग्लूकोज। तो आप ध्यान से समझो, जो मैंने बताया कैसे याद करना है आपको, कैसे बताएंगे कि कैसे मतलब आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आप सिंपल ये बनाएंगे, एक 6 मेंबर रिंग बनाएंगे। बच्चे इस ऑक्सीजन को बनाना भूल जाते हैं, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। ओके, और ऐसे ये लाइन सी बना लो। ठीक है, और एक और बना लेता हूं मैं साथ के साथ ही। आप ध्यान से समझ लेना, जिसको अभी तक की कहानी कुछ समझ में नहीं आई हो तो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? कार्बन नंबर लिख देंगे 1 2 3 4 5, और 6 कार्बन कौन होता है? CH2OH, और ये हो जाता है H। ऐसे ही 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन कौन हो जाएगा? CH2OH और H। अभी ये इतना याद रखें, ग्लूकोज में भी ऐसे ही रखना है। अगर आपके पास है गैलेक्टोज, ध्यान से समझ लो, गैलेक्टोज है, तब भी स्टूडेंट्स व्हाट यू विल डू, आपने ये तो बनाना ही बनाना है बेसिक स्ट्रक्चर। क्या? ये वाला बेसिक स्ट्रक्चर आपने बनाना ही बनाना है। ये क्या होगा? 1 2 3 4 5, और लास्ट वाला कार्बन क्या होगा? CH2H। ठीक है, एक बार और बनाओ, फिर आपको ये याद हो जाएगा। देखो, आप देखो इमीडिएटली मैं कितनी आसानी से अल्फा बीटा ये सारे स्ट्रक्चर बनाऊंगा। भूल मत जाना, बस ये ध्यान से देखते चले जाओ। अभी 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन कौन होता है हमारा? CH2OH। क्लियर है? अब देखो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ग्लूकोज में आपने क्या करना है? देखो, HOH कार्बन नंबर 1 पे, 2 पर और 4 पर, ये आपने एज इट इज रखना है। याद हो गए? कार्बन नंबर 1 2 4 ऐसे ही रहेंगे, 1 2 4, और 3 पर, ये 3 है, 3 पर आपने OH ऊपर रखना है और H नीचे। बस ये याद रखेंगे आप। 3 पर क्या रखोगे आप? OH ऊपर और H नीचे। बन गया आपका कौन? अब चेक कर लो, H ऊपर है तो ये क्या बन गया आपका? अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, बस बीटा में आप क्या कर देंगे? OH ऊपर रख देंगे। ठीक है ना? और 3 पे तो OH ऑलरेडी ऊपर रहता ही रहता, वो मैंने आपको बताया। तो 2 और 4 एक जैसे रहेंगे, बस 2 और 4 विल बी लाइक ओके सेम, बिल्कुल। और गैलेक्टोज जो है वो कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंट है। तो 4 पे क्या है? यहाँ H है और यहाँ OH है, तो यहाँ उल्टा कर दो, OH और H। बस, बाकी कुछ नहीं, सेम रहेगा। अल्फा है तो अल्फा वाला अल्फा जैसा रहेगा। HOH चेक कर लो ग्लूकोज और इसको।
3 पे तो सब में OH ऊपर रहना ही रहना है, ठीक है। तो ये बन गया अल्फा गैलेक्टोज। अब बीटा में क्या होगा, बीटा में देखो बिल्कुल OH ऊपर आ जाता है बस, और क्योंकि वो ग्लूकोज से अंतर रखता है इसलिए वहां पर 4 पे भी ऊपर ही रहता है वो, और 3 पे भी ऊपर रहेगा ही रहेगा, तो बस कार्बन नंबर 2 एज इट इज रहेगा। तो ये क्या बन गया आपका बीटा गैलेक्टोज। इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी बताओ भाई, ये अल्फा बीटा अल्फा गैलेक्टोज एंड बीटा गैलेक्टोज, Yes. ठीक है। चलिए जल्दी से अपने हैंड रेज करो, कितनों को समझ में आ गया। नाइनटीन, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एक और मैं स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं राइबोज के बारे में। राइबोज शुगर, जब स्ट्रक्चर की बात हो रही है, हालांकि ग्लूकोज से अलग चला गया, ठीक है ना। राइबोज शुगर एक होती है डीऑक्सीराइबोज। ये आपका डीएनए आरएनए में थोड़ा सा याद करना है, इसलिए स्ट्रक्चर बता रहा हूं बस मैं, जस्ट डायरेक्ट याद कर लेना चाहे तो। ये 5 कार्बन की रिंग शुगर होती है, तो भाई 5 कार्बन बना लिए हमने, कार्बन नंबर 1 3 4, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो 5th कार्बन कहाँ गया, क्या हुआ इसका कि भाई 5th कार्बन जो है वो कहाँ चला गया, कोई बता सकता है 5th कार्बन कहाँ होगा? स्टूडेंट्स, Sir, fourth carbon से जुड़ा हुआ होगा। 4th कार्बन से अटैच होगा, ठीक बात है। जैसे ग्लूकोज में था, ग्लूकोज में भी तो ये था ना, 5th से अटैच था 6 कार्बन, ये वाला ये 6 कार्बन ही तो है। ऐसे ही हम इसमें करेंगे। तो अच्छा, अगर मैं H नीचे रखूंगा पहले कार्बन पर, तो ये कौन सा बन जाएगा बताओ? और अगर मैं H ऊपर रखूंगा तो ये कौन सा बन जाएगा? H ऊपर रखा मैंने, OH नीचे रखा, तो ये अल्फा बन गया, ठीक है ना। 2 पर H OH, 3 पर भी ऐसे ही होता है भाई HOH, इसमें कोई चेंज नहीं आता, ये ग्लूकोज की तरह नहीं है। और छठा कार्बन जो होता है, 5वां कार्बन, वो ये रहा CH2OH, ये 5th कार्बन होता है, और ये H, ये बन गई अल्फा राइबोज, ठीक है। और बीटा में क्या हो जाएगा, बीटा में बस OH ऊपर आ जाएगा, कार्बन नंबर 1। ये डीएनए में मैं आपको बताऊंगा एक बार, ये इस तरह से होता है CH2OH और H, ठीक है। 5th कार्बन 4 3 2 1। और एक होती है 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये आपके डीएनए में होती है, और ये शुगर होती है आपकी आरएनए में। आरएनए का नाम यहीं से पड़ा है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का नाम यहीं से पड़ा है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये डीऑक्सी का मतलब क्या है कि उसमें कहीं पर ऑक्सीजन नहीं होगा, और कहीं पर कहां पर नहीं होगा, 2 पोजीशन पर नहीं होगा। तो 2 पोजीशन का जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है ये हटा दो, बस दोनों H रखो। दोनों क्या रखने आपने, H, सो इट विल बी 2 डीऑक्सी, अल्फा बनाई मैंने ये, अल्फा 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। और अगर बीटा बनानी होगी देन व्हाट विल आई डू, OH ऊपर ले लूंगा बस मैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है।
1 2 3 CH2OH और H, दिस इज कार्बन नंबर 4, दिस इज 5। ठीक है, तो ये आपकी डीएनए आरएनए में शुगर मिलेगी। ये दोनों किस में होंगी? ये होंगी आपकी आरएनए में। आरएनए में बीटा वाली शुगर होती है, उसमें याद रखेंगे, ये होती है आरएनए में। ठीक है, बीटा शुगर। और डीएनए में कौन सी होती है? ये वाली बीटा शुगर डीएनए में होती है, लेकिन 2 डीऑक्सी वाली। ठीक है, 2 डीऑक्सी। क्लियर है? Yes, sir. चलिए अब हम अगला टॉपिक स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। नेम ऑफ द टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट है, एक प्रॉपर्टी आपको 100% यू विल गेट इन योर एग्जाम, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ओके, एंड फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम बताएंगे कि हालांकि हम सिर्फ उसकी केमिकल रिएक्शन नहीं बताएंगे, हम ये बताएंगे कि उसका स्ट्रक्चर भी इलुसिडेट करेंगे। तो अगर कोई आपसे कहे कि प्रूव दैट प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन in glucose, if question is that how will you prove there are 6 कार्बन, प्रेजेंस में ईवी है ना, स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर लेना। there are 6 कार्बन in glucose, so how will you prove? you will say we will take, आप देखो ये मैं अलग अलग नहीं लिख रहा, जैसे आप देखते हो ये अलग अलग होते हैं ना, HOH 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 HOH, कितने हो गए ये? 1 2 3 4, इन सबको इकट्ठा लिख देता हूं मैं, देखो एक साथ। CHOH को मैंने क्या कर दिया? एक साथ 4। ठीक है, पहला कार्बन ये हो गया, 4 बीच में आ गए, लास्ट मेरा क्या हो गया? CH2OH, आसानी से हो गया। इफ यू विल ट्रीट दिस कंपाउंड विद HI, if you will treat this compound with HI and heat, so what you will get? CHO will be reduced as CH3, CHOH will be reduced as CH2, mean what? this is the sign of equivalent। equivalent मतलब जो स्ट्रक्चर अब मैं आगे बना रहा हूं वो भी यही है भाई। 4CH2 का मतलब क्या है? 4CH2 का मतलब है 1 2 3 4, लास्ट में कौन है? CH3। क्या है ये? नॉर्मल हेक्सेन है ये। क्या ये नॉर्मल हेक्सेन? स्टूडेंट आपने तो HI डाला, कार्बन थोड़ी डाले, और आपके प्रोडक्ट में मिल रहे हैं हेक्स। हेक्स का मतलब है 6 कार्बन। इसका मतलब क्या है कि भाई ग्लूकोज के अंदर उसकी कार्बन की चेन में कितने कार्बन हैं? because you are getting hexane. Hexane mean you are getting a compound in which 6 carbon are there. It's mean your reactant contains 6 carbon in its chain. Okay, so ये वो केमिकल है जिसकी हेल्प से आप ये पता कर सकते हो there are 6 carbon in glucose। ये क्वेश्चन भी आता है what happens when glucose is treated with HI? you will get an hexane। okay, clear? कोई डाउट इसमें? reduction, this is what student? reduction mean oxygen has gone, and hydrogen 14 hydrogen will come here, 14 H will come। काउंट कर लेना कैसे आएंगे 14। ठीक है, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि भाई ये हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, सो दिस रिएक्शन इज व्हाट? दिस इज रिडक्शन। ओके, सेकंड आप कैसे कहोगे कि देयर इज ए presence of carbonyl group। कार्बोनिल ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड हो, चाहे वो अल्डिहाइड हो या कीटोन हो। तो लेट्स सी व्हाट हाउ वी कैन सी। अगेन व्हाट इज दिस स्टूडेंट? अगेन व्हाट इज दिस? ग्लूकोज। So if you will treat this glucose with HCN, HCN, so what will happen?
and we know that oxygen is negative and carbon is positive. So pi bond, out of these two bond, one is sigma, one is pi break हो जाएगा and hydrogen will go on negative and CN will go on carbon. So what will be the product? कौन बताएगा? Here H will come and here CN will come. This. Okay. This is the cyanohydrin. Cyano mean CN, hydrin mean OH. किसका? ग्लूकोज का. इसका मतलब C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, यहां एडिशन रिएक्शन हो गई. C डबल बॉन्ड O ग्रुप एडिशन रिएक्शन दे देते हैं. किसके साथ? HCN हो गया. इसके साथ वो दे सकते हैं. ठीक है. यह सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया NaHSO3. वो बाद में मैं आपको बताऊंगा. ओके. इसका मतलब क्या है? ये कि रिएक्ट कर रहा है, साइनोहाइड्रिन बना रहा है. ठीक है. बात समझ में आई कि नहीं आई? If question is that how will you prove there is a presence of aldehyde group? How will you prove that there is a presence of aldehyde group? So two methods are there. First, ये वाला ग्रुप CHO ग्रुप है, ये प्रूव करना है हमने. मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन. ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा दो. हो सकता है आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए, ब्रोमीन एक्वस. फिनोल वाले पार्ट में मैंने आपको ये करवाया हुआ है. सो दिस एल्डिहाइड विल गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप. किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में. ठीक है. तो एल्डिहाइड था तभी तो वो ऑक्सीडाइज हुआ ना. तो ये आपका बन गया ग्लूकोनिक एसिड. ये एग्जाम में पूछा जाता है. व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर? तो आप क्या बताओगे? वी विल गेट ग्लूकोनिक एसिड. ग्लूकोनिक एसिड. इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप हैज ऑक्सीडेशन. और एल्डिहाइड ही वहां पर क्या हो सकता है? ऑक्सीडाइज हो सकता है. ठीक है. बात समझ में आ रही है कि नहीं? रेज योर हैंड. सो गए कुछ मुझे लग रहा है. चलो ठीक है. फिर चलिए फिर जल्दी से आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर और फिर हम अपनी टॉपिक को पूरा कर देते हैं. दिख रहा है कुछ तुम्हें? वाइब्रेट होता हुआ? अब नहीं. Fourth reaction. And in fourth reaction, most important, आपको प्रूव करना हो presence of 5 OH ग्रुप. तो देखो यहां पर CHOH कितने ले रहे हैं हम? 4. तो 4 OH तो ये रहे और एक ये रहा. ये प्रूव करने हैं. कैसे करेंगे? इसकी रिएक्शन कराएंगे हम. आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा ये एग्जाम में, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा. लेकिन मैं ओपन करके बता देता हूं, ये एक्चुअल में एनहाइड्राइड होता है. ये ऐसे बिल्कुल नहीं मिलेगा जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं. आपकी बुक में भी ओपन करके लिखा हुआ है. नेवर यू विल गेट लाइक दिस, यू विल गेट लाइक दिस. सो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट? आप ध्यान से देखो. ये व्हाट इज दिस?
CH3COO और एक H चला जाएगा यहां से, ठीक है। तो मैं 5 मॉलिक्यूल ले लेता हूं इसके, ठीक है। तो सभी के H जो है वो ये रिएक्ट करा के ले जाएगा। बचा क्या? CHO के साथ क्या जुड़ गया? CHO के साथ क्या जुड़ गया आपका? COCH3। और लास्ट वाले के साथ भी यही होगा, इसके साथ कौन आकर जुड़ जाएगा? COCH3। तो आपके साइड प्रोडक्ट क्या है? आपका साइड प्रोडक्ट है CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O O, और H कहां से आया आपका? H आपका आ गया ये वाला, वो बन गया आपका ये, ठीक है ना। और ये क्या था? CH3 C डबल बॉन्ड O, वो आपका यहां आ गया। जल्दी बताओ ये समझ में आई रिएक्शन या नहीं आई? इसको स्टूडेंट्स आप ऐसे भी लिखोगे, इस वाले प्रोडक्ट को भी। CHO दो तरह से लिखा जाता है एग्जाम में। CHO इसको कैसे लिखेंगे? COCH3, ओपन करके नहीं लिखेगा एग्जामिनर। और कई बार तो बच्चों को बड़े एक इंटरेस्टिंग वे में लिखता है। कैसे लिखता है? व्हाट इज दिस ग्रुप स्टूडेंट, व्हाट इज दिस? ये आपको मैंने फिनोल में करवाई थी एसाइलेशन रिएक्शन। क्या करवाई थी ये? एसाइलेशन। ये एसिटाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एसिटाइल ग्रुप है। तो मैं क्या लिख सकता हूं देखो, O के साथ ये कौन सा ग्रुप है? एसिटाइल। तो AC लिखूंगा मैं शॉर्ट में। ये ऐसे भी प्रोडक्ट वो लिख सकता है, एसिटाइल ग्रुप OAC। भाई वो तो ये वाला है यहां तक, CHO तो है ही, इसके साथ कौन जुड़ गया आप ये देखो ना, CH3CO। CH3CO कौन सा ग्रुप है? एसिटाइल ग्रुप है। इज इट क्लियर और नॉट? अगर समझ में आ गई, हाँ तो लास्ट लिखेंगे, लास्ट लिखेंगे रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड मीन फिफ्थ हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल क्यों? प्राइमरी अल्कोहल क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आप ये देखिए, ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है, बाकी ये CHOH जो है, ये OH जो है, ये सेकेंडरी है, क्योंकि ये दो साइड ग्रुप से जुड़ रहा है, एक तो CHO से और एक नीचे की तरफ CH2OH से। तो ये तो आपके सेकेंडरी अल्कोहल है। बट व्हाट अबाउट दिस OH? दिस इज लिंक्ड विद ओनली वन साइड, मीन इट इज प्राइमरी। So examiner is asking how will you prove that there is a presence of primary group also? So अगर आपको ध्यान आ रहा हो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन में, तो मैंने इस अल्डिहाइड, इस अल्कोहल ग्रुप को कुछ नहीं कहा था, एज इट इज था ये। सिर्फ अल्डिहाइड हैज ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। बट इफ यू विल टेक नाइट्रिक एसिड स्टूडेंट, concentrated nitric acid, so along with this aldehyde group, ये तो ऑक्सीडाइज होगा ही होगा। आपके सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन यहां नहीं हो सकता, लेकिन जो प्राइमरी अल्कोहल है इट विल आल्सो गेट ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? ये COOH में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और इसको बोलते हैं सैकेरिक एसिड। वहां क्या बना था? ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। इसको भी COH में बदल दोगे देन यू विल गेट सैकेरिक एसिड, और ये बदलेगा किससे? नाइट्रिक एसिड। मीन concentrated nitric acid will give the presence of primary alcoholic group। ये 5 रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद करनी ही करनी। कोई सी ना कोई सी एक एग्जाम में 100% आती है, एनी वन आउट ऑफ 5। ये जो मैंने 5 रिएक्शन किए इसमें से कोई एक आपके एग्जाम में आएगी ही आएगी इन 2021। ये रहे मेरे साइन, ठीक है। अब कितनों को समझ में आ गई? मुझे अपने हैंड रेस करके दिखा दो।